Welcome to Prashad classes. Myself Sandeep Mishra. Today start day third question series. Commerce. This is question helpful all TGT, PGT, CUT, 11th, 12th, BCom, BBA, and CA, CS, CPT, etc. related another exams. Accountant, junior assistant, UPPCL, others. Now start these questions. First question is, which of the following industries does not use processing cost? Oil refinery is already used. Uh, distilleries, sugars is the use of process cost. But अब यहाँ पर क्वेश्चन है नॉट ओनली एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग. तो राइट आंसर डी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. राइट आंसर डी. Next question, explanation have aircraft manufacturing. Explanations: aircraft manufacturing is the assembly type of manufacturing. All parts are processed and joined together at the manufacturing unit. Oil refining, distributions and sugar industries manufacturing products following a process costing. In process costing, manufacturing of products is done from the raw material to final products. Different in byproducts are manufactured. Joint products are manufactured from raw material also. Next question number 2. When price show a rising trend, which one of the following method in inventory valuation will be result in lower income and lower valuation of inventory? When price is raised, then use of LIFO method. तो राइट आंसर बी, LIFO method. When price is decrease, then use FIFO method. तो in this here right answer only B, option B. Next question, cost auditor is appointed by. Cost auditor is appointed by the board of directors. Right answer D, not a shareholders, not central bank, not a general registrar of company. So right answer D. Next question number 4. Question number 4 is, employees benefit to employees in financial year financial statement are recognized at. Means employees benefit to employee financial statement recognized as per Indian Accounting Standard 19. So right answer is D. आइए एक्सप्लेनेशंस नहीं है. व्हाट इज़ द सेट आर इशेंस ऑफ ऑडिटिंग. अगर इट इज़ इशेंस ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग के लिए सबसे मेनली क्या चीज़ है, मेन होना चाहिए डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट्स मीन्स वाउचर. इन दिस ईयर राइट आंसर ए. तो मेन इशेंस ऑफ ऑडिटिंग इज द राइट आंसर ए, वाउचिंग. 5 राइट आंसर ए. नेक्स्ट, which of the following not a basic economic problem? Basic economic problem, what to produce, how to produce, for whom to produce. इसका आंसर गलत हो गया हमसे, बट राइट आंसर है सी. राइट आंसर सी. इधर इसको एक्सप्लेनेशन है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस. फंडामेंटल क्वेश्चंस एंड आंसर्स. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 completed. Then question number 7. The effect of a change in price is negative for superior goods. यहाँ ये पूछा गया है कब किस चीज़ की इफेक्ट से हमारे प्राइस के चेंज से निगेटिव गुड्स होने लगता है. जब प्राइस हमारा इफेक्ट करता है. इट इज़ मीन राइट आंसर ए. बट नहीं, प्राइस की अपेक्षा हमारा प्राइस निगेटिव में कब जाएगा, देन हमारी इनकम इफेक्ट. राइट आंसर बी, इनकम इफेक्टेड. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फिक्स्ड कॉस्ट. कौन सा इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज द बारोड फिक्स्ड कॉस्ट, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड कॉस्ट, रेंट फिक्स्ड कॉस्ट, बट फ्यूल इज नॉट अ फिक्स्ड कॉस्ट. राइट आंसर बी. करेक्ट ऑप्शन 8, ऑप्शन बी. 8 का ये करेक्ट ऑप्शन है.
9. This is not a feature of monopolistic competition. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस का क्या नहीं होता है? नॉट, उसमें प्रोडक्ट डिफरेंटिएशंस होता है, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट उन्हीं की होती है, सेलिंग कॉस्ट भी उन्हीं पे डिपेंड करता है, पर इंटरडिपेंडेंस जो है वो नहीं रहते हैं, ये नॉट हो जाएगा। तो राइट आंसर डी है कि विच इज़ नॉट फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस। एक्सप्लेनेशंस है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज द मार्केट स्ट्रक्चर, देयर इज द लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स सेलिंग डिफरेंटेड प्रोडक्ट्स, देयर इज आल्सो नो बैरियर्स टू एंट्री, एवरीबॉडी कैन फिक्स द प्राइस एज पर देयर चॉइस, hence abnormal profit in the long run is not a characteristic of monopolistically competitive market. Next, the measures of business risk is, सबसे मेजर रिस्क जो बिजनेस की कौन सी है? देन आंसर है ऑपरेटिंग लेवरेज, राइट आंसर ए, 10 राइट आंसर ए, ऑपरेटिंग लेवरेज। The measures of business risk is operating leverage. Operating leverage is the cost accounting formula that measures the degree to which is the firm or profit per project can increase operating income by increasing revenue. SDR full form specially drawing rights, और ये हमारा किस में होगा? नॉट अ यूज से, ये सब नहीं, इंटरनेशनल रिजर्व असेट्स है। तो राइट आंसर ए, SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट। SDR is a international revenue assets. The SDR is not a currency but is the value based on the basket of 5 currencies. 5 currencies of basket means US dollar, the euro, the Chinese renminbi, जापानी येन एंड ब्रिटिश पाउंड। टोटल मीन्स यूएस का डॉलर, यूरोपियन कंट्री का यूरो, चाइनीज़ का रेनबी, जापान का येन एंड ब्रिटिश कंट्री का पाउंड। डोमेस्टिक करेंसी ट्रेड्स ऑन द डेप्रिशिएट ओइंग, यहाँ पे ये पूछा गया है डेप्रिशिएट, डोमेस्टिक करेंसी ट्रेड ऑन डेप्रिशिएशन, देन इट इज़ अ हाई इन्फ्लेशन रेट। इसका क्या इफेक्ट होगा? हाई इन्फ्लेशन रेट होगा। एक्सप्लेनेशंस नहीं है, सी ऑप्शन ही है। 13 इसका एक्सप्लेनेशन होगा इज़ यूज टू इवेलुएट बिहेवियरल डिस्क्रिप्शंस ऑफ जॉब। कौन सा इसमें से बिहेवियरल जॉब से रिलेटेड है? क्रिटिकल इंडिकेटर टेक्निक्स, पोजीशन एनालिसिस, नो, टास्क इन्वेंटरी, नो मेथड। तो क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक इज यूज टू इवॉल्व बिहेवियरल डिस्क्रिप्शंस ऑफ जॉब, राइट आंसर ए। इसका देखिए एक्सप्लेनेशंस है, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड इज जॉब एनालिसिस मेथड बाय विच इम्पोर्टेंट जॉब टास्क आर identified for job success. The objective of critical incident method is to be identify critical job task. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, सिग्निफिकेंस ऑल आउट एफर्ट्स फॉर इंक्रीज इन प्रोडक्शन, क्रिएशन ऑफ स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि सिग्निफिकेंस ऑल आउट एफर्ट इंक्रीज इन प्रोडक्शन, क्रिएशन स्पेशल म्यूचुअल ट्रस्ट, डेवलप, तो इट इज़ अ मेंटल रिवोल्यूशन, राइट आंसर बी। Next, mental revolutions idea behind principle of scientific management is to change the mental attitudes of workers and management towards each other. Taylor called it mental revolutions, right answer B. Question number 15 is not of the job training, is not of the job training, तो it is the job training vestibule, right answer. Simulations, right answer. एंड बिजनेस गेम्स इज राइट आंसर। नॉट अ स्पेशल असाइनमेंट, तो राइट आंसर इज डी। तो नॉट पूछा गया है, राइट आंसर डी इज द स्पेशल असाइनमेंट इज नॉट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इन केस ऑफ
Debentures, the investors are given the option to convert their investment in the form of equity shares. मतलब ऐसे कौन से डिवेंचर्स हैं जो इन्वेस्टर्स के रूप में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होना चाहते हैं? फुली कन्वर्टेबल, नॉट, पार्सली, नो, नॉट. राइट आंसर ऑप्शनली कन्वर्टेबल. राइट आंसर डी, ऑप्शनली. राइट आंसर डी. नेक्स्ट है, बैंक शुड क्लासीफाई एन अकाउंट एट NPA only if the interest charged during any quarter is not served fully within from the end of quarter. राइट आंसर ए, 90 days. कम से कम कितने होने डेज चाहिए? 90 days. नेक्स्ट, द मेन पर्पज ऑफ इंश्योरेंस इज, द मेन पर्पज ऑफ इंश्योरेंस इज indemnifications means compensation. राइट आंसर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन 19. A consumer strongly prefer to specific brand ones will not accept a substitute is. कस्टमर्स इसमें से कौन सा ब्रांड जो है स्पेसिफिक एक्सेप्ट नहीं करता है? तो आंसर हो जाएगा ब्रांड, ये एक्सेप्ट करता है ब्रांड प्रेफरेंस, ब्रांड लॉयल्टी, बट नॉट अ ब्रांड इंसिस्टेंस. राइट आंसर बी, ब्रांड इंसिस्टेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. इसका एक्सप्लेनेशन है, विद ब्रांड प्रेफरेंस अ कस्टमर प्रेफरेंस वन ब्रांड ओवर कंपीटिंग ब्रांड्स एंड विल परचेज इट इफ अवेलेबल. ब्रांड इंसिस्टेंस एक्वायर व्हेन कस्टमर विल एक्सेप्ट नो सुटेबल्स. क्वेश्चन नंबर 20. राइजिंग सेल्स एट इंक्रीजिंग रेट इन विदिस्ट. राइजिंग रेट कहा गया है, तो राइजिंग बढ़ता हुआ, इट इज मीन ग्रोथ स्टेज. राइट आंसर बी, 20. राइट आंसर बी. नेक्स्ट है 21. सेक्शंस ऑफ इंडियन एक्ट 1872 डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट एज एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ. राइट आंसर 2H. अंडर द sections of 2H of Indian Act 1872 define contract as an agreement enforceable by law. Right answer A. Match the following options. इसमें से वन ग्रुप है, टू ग्रुप टू. ट्रेडमार्क एक्ट 1999, कॉपीराइट एक्ट 1957, पेटेंट एक्ट 1970, ट्रेडमार्क पेटेंट एक्ट 1970, डिज़ाइन एक्ट 2000. तो ये हमारे देखो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4. इसका मतलब 1 2 3 4 राइट आंसर होना चाहिए. 1 2 3 4 राइट आंसर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑप्शन दिया है ए. अ लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप हैव टू एट लीस्ट 2 मेंबर एज पर सेक्शंस. किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? तो 6 में. इसका एक्सप्लेनेशंस भी है, देखिएगा. प्रिलिमिनरी, शॉर्ट लिस्टेड एंड डेफिनेशन, चैप्टर 2 में नेचर ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के 6 में ये देखो दिया है मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स. आंसर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? लेटिंग फ्रॉम हाउस नो, लेटिंग एन ऑफिस बिल्डिंग बिल्कुल, ओपन प्लॉट नो, सबलेटिंग ऑफ हाउस. तो ये हो गई अदर इनकम. तो राइट आंसर बी, लेटिंग ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग. राइट आंसर बी. विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंसेज इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉई? कौन से एम्प्लॉयज़ के हैंड में टैक्सेबल नहीं होगा? CCA टैक्सेबल, टिफिन अलाउंस टैक्सेबल, DNS अलाउंस टैक्सेबल. बस अलाउंस फॉर यूनो इन इंडिया इट इज़ नॉट टैक्सेबल. राइट आंसर डी. This is question completed of 25 for day 3. Please like, share and subscribe this channel for more to getting video. Thank you. Have a nice day.